Good morning, friends. In today's lecture, we are going to study about position of the minor in a partnership firm. As per section 10, I hope you remember section 10 of the Indian Contract Act. It has been rightly said, one of the important conditions for valid contract is party you are entering into a contract should be a competent party, and minor as such is not a competent party. Minor is an incompetent party. With the minor you cannot make any kind of an agreement. However, we have seen that minor can be a beneficiary, but you can't make any agreement with a minor, and any agreement made with a minor is a void ab initio. The same rule applies here also. You cannot form a new partnership with a minor, and as such minor cannot be admitted in a partnership firm. However, there are certain exceptions where minor is allowed to be admitted in a partnership firm, but straight away the general rule is minor is incompetent to enter into any contract, hence he cannot be a partner in a partnership firm, subject to certain exceptions which we are going to cover today. Now, if you refer this flow chart, all the important things have been covered under this particular flow chart. You will see this. Minor's position during the age of minority, what they have given. During the age of minority, he can't be a partner. Straight away the rule is he can't be a partner, but he can be admitted to the benefit of the firm. We'll see all that. He can receive the profit and a part of the profit of the firm, part of the property of the firm. He has a right to access the books of account. He is not personally liable. Only his share of profit and property is liable. He can file a suit against the partnership firm for his profit and property, but firm can't file a suit against him. And after attaining the age of majority, he is bound to give a public notice within 6 months about the decision otherwise assumed to be a partner. We'll see all that. If he accept, that means if he decide to become a partner, his position will be same as that of other partners. He will become personally liable for act of the firm, and share of profit and property will be same which was earlier agreed to. And if he reject, that means if he does not want to become a partner after becoming a majority, his liabilities as a partner will be same till the notice date. That means he is bound to give a public notice. He is bound to give a notice and inform that whether he want to continue or whether he don't want to continue as a partner. He will not be liable for further liability. He can sue the partner for his share and property, share in the profit and property. All these we'll cover today. What they have given. Partnership is based on the mutual contract, and therefore only those who possess the capacity of the contract can be a partner in the partnership firm. Who possess the capacity, that means who is a major. As per section 10, we have seen that who is a competent party to enter into a valid contract. We have seen he should be a major, he should be a person of sound mind, and he should not be disqualified by the court of law. In the same manner, here also it has been said that a person who is a competent to enter into a contract, that means he should be a major. According to the Indian Contract Act, an agreement by a minor is void ab initio as against him, but he can derive benefit under it. We have seen that कि minor के साथ आप कोई contract नहीं कर सकते, लेकिन contract के अंदर minor can be a beneficiary. किसी contract में आप minor को benefit दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर liability attach नहीं कर सकते. This we have already done under section 10 in Indian Contract Act. As such, minor cannot be a full-fledged partner. He can at most be admitted to the benefit of partnership. Section 30 of the Partnership Act does provide that though a minor cannot be a partner in a firm, but
with the consent of all the partners of, for the time being, he may be admitted to the benefit of partnership. What is a straight rule? You cannot allow a minor to become a partner in a partnership firm. You cannot make a new partnership firm with a minor. In the existing partnership firm also, you cannot admit a minor in a partnership firm. However, Partnership Act 1932 gives certain exceptions, certain independence. It has been said that कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि किसी माइनर को उनके पार्टनरशिप फर्म में लेने से अगर उस पार्टनरशिप फर्म का फायदा होता है और सभी उसका यूनानिमस कंसेंट देते हैं, यानी सभी पार्टनर उस माइनर को एडमिट करने के लिए अगर तैयार है, तो then that minor can be admitted for the benefit of partnership firm. Now the question arises in your mind that कि minor को admit करने से partnership firm का क्या फायदा? Now just try to imagine that कि Dhirubhai Ambani has one minor son. For example, Nita Ambani has one son who is a minor. Now just imagine that कि अगर उस अंबानी फैमिली के माइनर सन को अगर मैं मेरे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर लेता हूं, तो इनडायरेक्टली मेरे पार्टनरशिप फर्म का कितना गुडविल बढ़ जाएगा. आई कैन टेल प्राउडली टू एवरीवन दैट कि अंबानी मेरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है. दिस इज सम इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट विल डिराइव टू द पार्टनरशिप फर्म. अगर सामने वाला कस्टमर या सप्लायर अगर ये बात सुनेगा, बैंकर्स, लेंडर्स अगर ये बात सुनेंगे कि इतने बड़े घर का लड़का या फिर कोई भी लड़की मेरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो दे विल स्ट्रेट अवे गिव मी द लोन, दे विल स्ट्रेट अवे गिव मी द गुड्स ऑन क्रेडिट. कस्टमर विल गेट अट्रैक्टेड टू द माय पार्टनरशिप फर्म. दिस इज समव्हाट बेनिफिट आई एम गोइंग टू डिराइव टू माय फर्म. तो दैट्स व्हाट इट हैज बीन सेड दैट कि अगर minor cannot be admitted into partnership firm, this is a straight rule. लेकिन as per the provision of Partnership Act 1932, one exception is what? कि minor can be admitted in a partnership firm, provided there has to be certain benefit to the firm, and he can be admitted only with the consent of all the parties. माइनर को आप आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म को उसके एडमिशन से कुछ फायदा है और उसके एडमिशन के लिए सभी बाकी के पार्टनर्स अगर तैयार है, तो इस कंडीशन में वो माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं. लेकिन सेक्शन 10 की एक और कंडीशन ये याद रखनी है अपने को कि माइनर के ऊपर आप कोई लायबिलिटी नहीं डाल सकते हो. माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी. तो इन द सेम मैनर अगर उस माइनर को आप आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, तो लायबिलिटी ऑफ दैट माइनर विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ जो भी उसको पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला है, यानी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी. लायबिलिटी ऑफ दैट माइनर विल नॉट बी अनलिमिटेड. ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस. ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट पेएबल टू द आउटसाइडर्स. तो इसका मीनिंग क्या है कि आप माइनर को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाल सकते. फॉर द व्हाट दे हैव गिवन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सच माइनर विल बी गॉन अंडर सेक्शन 30 एज फॉलोज. व्हाट आर द राइट्स? अगर माइनर को आपने आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया, तो माइनर के क्या राइट्स रहेंगे? A minor partner has a right to his agreed share of profit and of the firm, profit and property of the firm. जो भी आपने उसको एग्री करके दिया है कि अगर आप हमारे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होते हो तो हम आपको इतना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो आपको उतना शेयर उसको देना पड़ेगा. He can have access to and inspect and copy the accounts of the firm. That minor partner will be entitled to copy the books of account. आपने उसको वादा किया है कि आप उसको इतना % रेशियो प्रॉफिट का शेयर देंगे, तो उस पर्पस के लिए अगर उस माइनर को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने, माइनर यानी जस्ट इमेजिन 16-17 ईयर्स का बंदा भी यू कॉल इट एज अ माइनर.
लेकिन ये 16-17 ईयर्स का अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसको अकाउंट्स बराबर समझ में आते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर माइनर इज एंटाइटल्ड टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है और उसको ये चेक करना है कि जो प्रॉफिट का शेयर उसको प्रॉमिस किया था वो बराबर दे रहे या नहीं दे रहे, तो उसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट के एक्सट्रैक्ट या कॉपी ले सकता है। He can sue the other partner for the accounts or for payment for his share, but only when severing means separating his connection with the firm and not otherwise. अगर उस माइनर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे नहीं बता रहे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो बता रहे वो करेक्ट नहीं है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स। लेकिन उसको पार्टनरशिप फर्म के साथ अपने कनेक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे, सीवियर यानी सेपरेट करने। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उनके खिलाफ केस भी फाइल कर रहा है और उनके साथ एज अ पार्टनर कंटिन्यू भी कर रहा है। ही कैन नॉट कंटिन्यू। If he feels that he has certain doubts as regards to books of account, he can file a suit against the other partner. But if he elects to fight a suit against the other partner, अगर वो इलेक्ट करता है कि उसको पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस फाइल करना है, तो at the same time he will have to break his relationship with the partnership firm. On attaining the majority, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner. If he elects to become a partner, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor. If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served to that effect. This is very, very important condition. After attaining the age of majority, for example, अगर उसका बर्थडे फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 को आता है, तो यहां से 6 महीने यानी 30 सितंबर 2020, फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 अप्रैल 2020 ही बिकम्स अ मेजर। तो वो बोल रहा है कि जब भी वो मेजर बनेगा या फिर उसको जब नॉलेज में आएगा कि उसको एज अ पार्टनर एडमिट किया था फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, तो वो बोल रहा है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर डेट पे मेजर हो जाता है, तो वहां से 6 महीने के अंदर या फिर उसके जब नॉलेज में आता है कि उसको एडमिट किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, विच एवर इज लेटर। अब सपोज 1 अप्रैल 2020 को मेजर हुआ, तो वहां से 6 महीने यानी 30 सितंबर 2020 तक उसको इलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है कि वेदर ही फील्स टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप फर्म और नॉट। अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस। उसको नोटिस देना है और इन्फॉर्म करना है कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहता है। और अगर वो पब्लिक नोटिस देके इन्फॉर्म कर देता है कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म। उसके मेजर होने के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर्ड हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं आएंगी, अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है कि ही वांट टू ब्रेक द रिलेशन। However, if he does not give a notice within a period of 6 months after attaining the age of majority, it will be assumed that he has elected to become a partner in a partnership firm. ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने एज अ पार्टनर अपने आप को एडमिट कर लिया है, क्योंकि क्या रूल है कि ड्यूरिंग द माइनॉरिटी के माइनर के साथ तो आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और पार्टनरशिप इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो वो जब भी मेजर बनेगा तो वो पर्टिकुलर माइनर के साथ आपको एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो नया एग्रीमेंट क्या है कि वो एडमिट होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो अगर वो पब्लिक नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ नहीं देता है, तो इट विल बी अज्यूम दैट कि वो कंटिन्यू करना चाहता है।
he want to continue as a partner in a partnership firm, यानी उसने अपना नवा एग्रीमेंट बना लिया है और वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है और बाकी के पार्टनर ने उसको एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर वो पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी लायबिलिटी वाज लिमिटेड अगर वो डिसकंटिन्यू करता तो, लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो पब्लिक नोटिस भी नहीं देता है, तो मान लिया जाएगा कि बाकी के पार्टनर ने थ्रू एग्रीमेंट उसको एडमिट कर लिया है एंड हिज लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। और इट हैज बीन सेड लायबिलिटीज बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी यानी ड्यूरिंग माइनॉरिटी, minor has been admitted in a partnership firm for the benefit of partnership firm to during the minority यानी 1 अप्रैल 2020 का उसको बर्थडे और उसका वो 18 इयर्स का हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 के पहले उसके राइट्स और लायबिलिटीज क्या रहेंगे। लायबिलिटीज के बारे में क्या बोला है, द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लायबिलिटी ऑफ दैट माइनर विल बी लिमिटेड, बाकी के पार्टनर्स की लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर पार्टनरशिप फर्म प्रॉब्लम में आता है, उनके लायबिलिटी डेब्ट्स एसेट से इंक्रीज हो जाते हैं, तो बाकी के पार्टनर्स को अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देना है। लेकिन माइनर की पोजीशन ऐसी नहीं है क्योंकि वो माइनर है एंड माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी, उसके ऊपर आप लायबिलिटी अटैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है माइनर की लायबिलिटी कितनी रहेंगी, उतनी रहेंगी जितना उसको पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का शेयर मिल रहा है या मिलने वाला है, यानी उसके अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी लायबिलिटी वहां तक के सीमित रहेंगी, उसको अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देने की जरूरत नहीं है। Minor has no personal liability for the debt of the firm incurred during his minority. Minor cannot be declared insolvent, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm vests in the official receiver or assignee. अगर partnership firm insolvent हो जाता है, तो बाकी के पार्टनर्स के घर से भी पैसा लाया जाएगा, लेकिन माइनर के केस में उसके घर से पैसा नहीं लाया जाएगा। माइनर का जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन या जितना कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट अमाउंट है या जितना उसका प्रॉफिट का शेयर बना हुआ है वहां तक की उसकी लायबिलिटी रहेंगी एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल गो इन द हैंड्स ऑफ ऑफिशियल असाइनी जो कोर्ट अपॉइंट करेगा, और उस अमाउंट को वो ऑफिशियल असाइनी यूज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टू द आउटसाइडर्स। लेकिन माइनर के पर्सनल लायबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी यानी 1 अप्रैल 2020 को ये माइनर क्या हो गया अब मेजर, तो अब उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी। तो क्या बोल रहा है, विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग द मेजॉरिटी और ऑन हिज ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विचएवर इज लेटर यानी 1 अप्रैल 2020 को 18 साल का हो गया, तो वहां से 6 महीने यानी 30 सितंबर 2020 या फिर जब उसके नॉलेज में आया कि उसको पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बेनिफिट के लिए एडमिट किया था, पार्टनर्स ने बताया, बाकी पार्टनर्स ने उसको बताया, तो विचएवर इज लेटर जो भी डेट बाद में है, तो वहां से क्या हो रहा है, द माइनर हैज टू डिसाइड whether he shall remain a partner or leave the firm. उसको डिसाइड करना है कहाँ 1 अप्रैल 2020 से 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है, या फिर जब भी उसके नॉलेज में पार्टनर्स डालते हैं कि वो एडमिट हुआ था एज अ पार्टनर, तो विचएवर डेट इज लेटर उसको डिसाइड करना है कि ही वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और ही वांट टू डिसकंटिन्यू एज अ पार्टनर। Where he has elected not to become a partner, he may give a public notice that he has elected not to become a partner, and such notice shall determine the position as regards the firm. Notice कब तक देना है? Within the period of 6 months from the date of attaining the majority, या जब भी उसके नॉलेज में आता है वो डेट के पहले उसको पब्लिक नोटिस देना है।
अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है तो। अगर उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है तो फिर भी वो पब्लिक नोटिस दे सकता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है और बाकी के पार्टनर ने थ्रू एग्रीमेंट उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया है। यानी अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो विदिन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग द मेजॉरिटी हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस दैट ही वांट टू डिसकंटिन्यू। इफ ही फेल्स टू गिव द पब्लिक नोटिस, इट विल बी अज्यूम दैट ही वांट टू कंटिन्यू। अब अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है या डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लायबिलिटीज क्या रहे, क्या बोल रहे हैं? इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. 6 महीने का टाइम है। 1 अप्रैल 2020 को मेजर हो गया, 30 सितंबर 2020 तक उसको डिसाइड करना है कि whether he want to continue or whether he want to discontinue. Suppose 25 सितंबर 2020 को वो डिसाइड करता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है इस फॉर्म में, तो 26 सितंबर को he should give a public notice and inform the outsiders that he want to discontinue. उसको डिसकंटिन्यू करना है and now he is not a partner with that partnership firm. Such minor shall give the notice to the registrar that he has or has not become a partner. Together with the public notice, he should also inform the ROF, registrar of a firm, that whether he want to continue or whether he want to discontinue. When he becomes a partner, यानी वो पब्लिक नोटिस द्वारा इन्फॉर्म करता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, या वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो भी मान लिया जाएगा कि he want to continue as a partner in the partnership firm. तो what it says, when he become a partner, अब उसके लायबिलिटीज और राइट्स क्या रहेंगे? अगर 1 अप्रैल 2020 को वो मेजर हो गया और उसने 30 सितंबर 2020 तक पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो क्या मान लिया जाएगा कि he want to continue as a partner in a partnership firm. तो if he want to continue as a partner in a partnership firm, then what is his liability? What it has been said. If the minor become a partner on his own willingness or by his failure to give the public notice within the specified time, that means अगर वो खुद होके पार्टनर्स को बोल देता है कि आप मुझे एडमिट कर लो, या पार्टनर्स उसको उसकी परमिशन लेके उसको एडमिट कर लेते, या फिर वो विद इन 6 months पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो गया एज अ पार्टनर. His rights and liabilities under section 30 subsection 7 are as follows. He becomes personally liable to the third party for all the act of the firm done since he was admitted to the benefit of partnership. Now it means that 1 अप्रैल 2020 के बाद जब वो मेजर हो गया and he has decided to become a partner in a partnership firm, his liability will become unlimited. यानी आज के तारीख में जो भी डेब्ट स्टैंडिंग है बुक्स के अंदर, उसकी जिम्मेदारी, उसका शेयर वो पर्टिकुलर मेजर पार्टनर पे भी आएगा जो पहले माइनर था. His share in the property and profit of the firm remains the same to which he was entitled as a minor, unless and until the share of that particular minor is not changed after attaining the majority. वो पर्टिकुलर रेशियो विल कंटिन्यू इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी. जो पहले डिसाइड किया हुआ शेयर था, फॉर एग्जांपल ही वाज एडमिटेड फॉर 20% शेयर, तो दैट 20% विल कंटिन्यू इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी अनलेस एंड अंटिल दैट परसेंटेज हैज बीन चेंज्ड बाय सप्लीमेंट्री डीड, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू. तो क्या होगा अगर वो डिसाइड करता है कि उसको कंटिन्यू करना है? डिसाइड कैसा करेगा? या पब्लिक नोटिस नहीं देगा, या फिर with the consent of the partners he will be admitted in a partnership firm. Then his liability will become unlimited and he will be liable for all the debts of the firm that was entered, that was entered into after he became a partner in a partnership firm. यानी जब से वो माइनॉरिटी के टाइम से जो भी डेब्ट चली आ रही है अभी तक,
उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर पे आ जाएगी, उसका जो भी शेयर बनेगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, उसका शेयर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना माइनॉरिटी के टाइम पे एग्री किया था, इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। When he elects not to become a partner, when he elects not to become a partner in the sense he has given a public notice within a period of 6 months and he has also informed the registrar that he don't want to continue as a partner. यानी 1 अप्रैल 2020 को वो मेजर हो गया, उसके बाद उसने डिसाइड किया है कि उसको पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना है। तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गिव अ पब्लिक नोटिस और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि उसने ये अगर कर लिया, उसने नोटिस दे दिया, रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर दिया कि उसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो क्या होगा। His rights and liabilities continue to be those of the minor up to the date of giving public notice। यानी अगर वो नोटिस दे देता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, उसकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेंगी जितनी माइनॉरिटी के टाइम पे थी। दैट मीन्स लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। एक बार उसने नोटिस दे दिया, उसके बाद जो भी लाइबिलिटी इनकर्ड होंगी उसकी जिम्मेदारी उस पार्टनर पे नहीं आएगी। He shall be entitled to sue the other partners for his He shall be entitled to sue the other partners for his share of profit and property। अगर वो इलेक्ट करता है कि उसको पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना है, तो जो भी उसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट का शेयर रहेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म से मांगेगा कि मैं अब डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, मैं निकल जा रहा हूं, जो भी मेरा अमाउंट क्रेडिट है पार्टनरशिप फॉर्म में वो आप मुझे दे दो। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रिफ्यूज करती है देने के लिए, तो दिस पार्टनर हु हैज नाउ बिकम अ मेजर is entitled to file a suit against the other partner for the purpose of recovering his share of profit and property। Clear with this? So this is a stand of a minor in the case of partnership firm। तो once again just we'll revise। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, during the age of minority क्या बोला है, he can't be a partner but he can be admitted to the benefit of the firm। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आई टोल्ड यू दैट माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेम रूल इज एप्लीकेबल इवन इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए गए जिसमें बोला गया है कि अगर सभी पार्टनर्स का कंसेंट पॉजिटिव है और अगर उस माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में लेने से पार्टनरशिप फॉर्म का अगर कोई बेनिफिट होता है तो माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है। He can receive the profit and part of the property of the firm। अगर माइनर को एडमिट करते हैं तो लाइबिलिटी कुछ भी शेयर नहीं करेगा, लॉसेस कुछ भी शेयर नहीं करेगा। He will be entitled for profits and property of the firm। Liability of that particular minor will be limited to the extent of जो भी पार्टनरशिप फर्म से उसको शेयर मिल रहा है उसकी लाइबिलिटी उस हद तक ही रहेंगी। यानी सपोज फर्स्ट ईयर पार्टनरशिप फर्म से उसको 20,000 रुपीज प्रॉफिट का शेयर मिला, तो उसके अकाउंट को 20,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। तो लाइबिलिटी विल बी एक्सटेंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है तो वो 20,000 रुपए जो उस माइनर पार्टनर के बुक्स में खड़े वो यूज हो सकते हैं, उससे ज्यादा माइनर को अपने पॉकेट से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। He has a right to access to the books of account। वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसको राइट्स दिया गया है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपीज भी ले सकता है। लेकिन अगर वो केस फाइल करने की ठान ले कि पार्टनरशिप फर्म पे केस फाइल करना है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग एन एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन ही विल हैव टू ब्रेक हिज रिलेशनशिप विद द फर्म। He is not personally liable, only his share of profit and property is liable। I told you that liability of the minor will be limited, will not be unlimited, will be limited only to the extent of उसको जितना पार्टनरशिप फर्म से शेयर मिल रहा है उसकी लाइबिलिटी वहां तक के सीमित रहेंगी। He can file a suit against the partnership firm for his profit and property, but firm can't file a suit against the minor।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइनर इज अ बेनिफिशियरी। अगर माइनर को उस बेनिफिट से आप उस माइनर को अगर जो बेनिफिट प्रॉमिस किया है वो बेनिफिट अगर आप अलूफ रखते, उसको नहीं देते, तो देन दैट माइनर इज एंटाइटल्ड टू go against the partnership firm in the court of law. After attaining the majority क्या बोला गया है कि उसको 6 महीने में इन्फॉर्म करना है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहता है तो बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो पब्लिक नोटिस दे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो नोटिस दे सकता है। लेकिन अगर नोटिस नहीं भी दिया तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। इफ ही एक्सेप्ट, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो इफ ही एक्सेप्ट सेम पोजीशन एज दैट ऑफ अदर्स पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी विल बी सेम। अगर वो डिसाइड कर ले, यानी वो अगर नोटिस नहीं देता है, तो देन मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो फ्रॉम दैट पॉइंट उसकी लायबिलिटी हो जाएगी अब अनलिमिटेड एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेब्ट इनकर्ड सिंस हिज इंसेप्शन एंड his profit share will be same as which was earlier promised to him unless and until it has been changed through a supplementary deed. अगर वो रिजेक्ट करता है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, that means he has given a public notice and informed within a period of 6 months that he doesn't want to continue, तो फिर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेंगी और उसके नोटिस देने के बाद जो भी डेब्ट इनकर्ड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस माइनर पे नहीं आएंगी। The liability as a partner will be same till notice date, will not be liable for further liabilities. He can sue the partner for his share of profit and property. अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो उसका जितना भी प्रॉफिट या प्रॉपर्टी में शेयर रहेगा वो मांगेगा पार्टनरशिप फर्म से और पार्टनरशिप फर्म को वो देना पड़ेगा। अगर फर्म रिफ्यूज करता है तो देन दैट माइनर इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। So this is all about minor's position in a partnership firm. Hope you have understood the concept. Bye everyone.